Good evening, everyone. Welcome to today's Sunday evening talk. And coming to the topic of today's session, happy and easy living, as well as sharing details of overseas tour. So Vasanta Didi was on the tour for like more than 10 or 15 countries for over a month. So we are very excited to hear the learnings from him. So before starting, let's welcome Vasanta Didi on stage. Vasanta Didi is a senior faculty at Brahma Kumaris. She is a motivational speaker, meditation guide, corporate trainer, facilitator and educationalist. She has done her MA, MPhil, MBA in self-management and crisis management. She worked as a lecturer at several educational institutes before dedicating herself as a full-time faculty for Brahma Kumaris with an intent to serve humanity. She has a deep understanding of different cultures and a keen interest in serving humanity. She has an innate ability to create a candid and comfortable atmosphere for the audience. She has a very entertaining style in presenting spiritual knowledge. Her current engagement indicate various personality. Okay, so Didi has traveled many countries and she has experience of serving different cultures. So we will learn from her. So welcome Didi once again. Over to you. Om Shanti. Good evening. May I request everyone to come and occupy the front seats? Without my request also you adjusted yourself. That is so nice of you all. अगर और भी आगे आए तो बहुत अच्छा, क्योंकि सामने के सीट्स आपके लिए ही है. कैसे हैं आप सब? बहुत समय से देखा नहीं है इसलिए पूछ रहे. तो आज का टॉपिक है हैप्पी एंड ईजी लिविंग. तो आपका लाइफ इजी है? नहीं है? तुरंत आंसर. इजी नहीं है. अच्छा, क्यों इजी नहीं है? हाँ, देखा किस लिए ऐसा है? हाँ, कौन सी प्रॉब्लम, which problem is making your life not to be easy? Desires, expectations, और overthinking. हाँ जी, और कौन सी बातें which are making your life not to be easy, not to be happy? Responsibilities. Responsibilities. Okay, all right. We'll talk about it. Children. Oh my God. Children supposed to be giving you happiness. That's why you made them. हाँ, मुसीबत के लिए थोड़े ही बनाए उनको. जनरेशन गैप. जॉब या हाँ जी, कॉर्पोरेट स्टाइल, कॉर्पोरेट कल्चर, और लाइफस्टाइल. डिसीज या. There was a survey in the whole world happiness के बारे में. तो it was seen especially in the very rich culture, rich places of America, especially this survey was taken. What makes the man happy?
So first thing they have seen, if means money makes happy. Yes, how many of you say it's happy? No? Okay. Then go home and I'll give my bank account and transfer all your money to my bank account. क्योंकि money doesn't make you feel happy, no? Huh? No need of money? हाँ, एक ही व्यक्ति बहुत ऑनेस्टी से, अच्छा और दो बस, बाकी लोगों को नहीं चाहिए मनी. आप शायद डर गए वसंता बहन के अकाउंट में भेजना है, इसीलिए फिर चलो भाई हम जी. तो मनी नो नीड. हाँ, it is not the happiness. Okay. You can buy happiness. Money can buy happiness. Then every one of us could bought the happiness by now. This is a new statement I have heard first time. Money can buy happiness. वाह रे वाह. सबके पास है मनी, किसके पास मनी नहीं है? हाँ, सभी के पास मनी है ना? हाँ, मैं बहुत बार हंसते हुए बोलती हूँ, इंडिया may be poor but not Indians. Yeah? हाँ, Indians are rich. हर एक के पास कितने सारे गहने हैं या गोल्ड है, मनी है, घरे हैं. तो then how one is not happy with all those things also? Huh? Okay. So there was this survey. So money can make one happy. So they went to some very special universities where we feel they are prestigious universities of the world, like Harvard School of Business or Harvard University, and many other universities also. They went and they tried, conducted this survey, and they found out that they conducted this survey and they said they did not find any happiness by getting so many degrees, right? By having so many degrees in the life, they did not feel happy. And second thing, usually what we think, what will give happiness? One is money. One is education we talk about, and second one is money. Okay, third one is relationships. Hanji? Success, name, fame, yeah. Health. Yeah. So especially 3-4 areas they worked, which in general commonly people talk about. So one is education, because education will bring the name and fame or the success in career, and which in return gives happiness to the world, to human being. So they went to the education part where so many educational institutions and so much of education is flowing. So that was one survey. And second part of that survey was they went to the prime place, especially where there are so many government organizations, or we can say very rich people of the world live, especially Washington area. So in America, they surveyed so many people of Washington area where very rich class of society live. So they found out that it is not the money also, whatever they have, they are supposed to be having so much of happiness. If money can buy the happiness, then they must have having lot of happiness. So they found that they were also not happy. Having all the things, having all the money of the world, but still they were not happy. And third thing, usually what we think that name, fame, the beauty especially, so all these things we quote that this is what gives one feel happy. So this is third area where they went for Hollywood, especially the
actors, actresses of the Hollywood, they found out and they had all the time this uncertainty. What will happen to me after this? Right? Huh? Because everyone know that this is temporary and what will happen after this. So there was no happiness for them also. They were not enjoying the process. They were just thinking about the future. So there was no happiness there also. So like that they have seen many areas of the very rich people, very rich things where are there. And at last they found happiness is not in all these things. Do you agree? Huh? Do you agree? Money, beauty, name, fame, success, right? And the education alone, yeah, or the good food, yeah. This is what we all feel. And of course, relationships. हाँ तो बच्चे हैं रिलेशनशिप्स में, बच्चे ही बहुत तंग कर रहे हैं, फिर हैप्पीनेस उड़ गया बच्चों से, फिर हम बोल रहे हैं रिलेशनशिप्स. हाँ तो बच्चे हैं खुशी के लिए, बच्चे हैं हमको हैप्पीनेस देने के लिए, फिर बच्चे ही फिर बहुत सिर दर्द दे रही है, या तो दे फाउंड दैट. So what is happening? So I am asking the same question to you also. What is the problem actually? So where the human being is stuck? Yeah? Lack of contentment. Or understanding of lack of understanding. Yeah, lack of understanding. Okay. Awareness नहीं है. हाँ. हाँ जी. Excitement. Excitement of. So there is no contentment anywhere. So all the time there is desire to have more and more. Yeah. So one thing is very good that we all are having all these things, whatever we said till now. So when it comes to life, having is good. But we stop right there. But having is okay, good, but it will give me temporary happiness. हाँ कुछ खाया, खाने के बाद हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फिर रात को क्या खाना है तभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर है ना. दोपहर को बहुत अच्छा लंच प्रिपेयर किया, आज संडे है, यू आर बीइंग एट होम, यू प्रिपेयर्ड समथिंग वेरी गुड एंड यू एंजॉयड. रात को क्या बनाना है, फिर वहां पर ही शुरू हो गया. मीन्स देर इज नो हैप्पीनेस जस्ट हैविंग फिजिकली. खाने से, देखने से, पहनने से या सुनने से, राइट ये जो भी है फील गुड फैक्टर्स, दैट्स ऑल टेम्पररी. यस यस और नो. आज बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, बहुत अच्छा है, उसकी खुशी बहुत है. फिर कल जो नॉर्मल ड्रेस पहनना है फिर वही चलेगा, या 6 महीने के बाद फिर और एक पार्टी में जाना है, अरे मेरे को तो ये नहीं पहनना है क्योंकि ऑलरेडी वो पहन चुकी हूँ. या हैविंग इज गुड, बट हैविंग इज गिविंग यू टेम्पररी हैप्पीनेस, राइट. तो स्पिरिचुअलिटी में अगर देखेंगे तो ईजीनेस कहाँ से आती है? ईजीनेस इज नॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स, ईजीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड. यस, ईजीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड. तो ईजीनेस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस ये जो भी है ना, स्टेट ऑफ माइंड है. अगर मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से देखती हूँ जो भी है मेरे पास, ये टेम्प्ररी चीज़ें हैं, लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूँ,
इसके बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ. That is where spirituality brings us. हाँ, ये टेम्पररी जो है, हाँ वो खुशियाँ हैं जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ, वो देखने की जो नजरिया है ना मेरा, द वे हाउ आई एम लुकिंग एट देम इज टोटली डिफरेंट व्हाट दे आर एक्चुअली. तो एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड अगर मैं समझती हूँ कि मैं फिजिकल चीज़ों से ही खुश हूँ तो वहाँ पर ही स्टक हूँ. एक्चुअली व्हेन आई एम बीइंग, that is next step. Having is physical. When I be happiness, when I am easy inside, then I will see everything easy also. क्योंकि नजरिया ही बदल जाती है ना, है या नहीं? किसी किसी के लिए वही दुख की घटना बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, किसी के लिए ठीक है, विल ओवरकम दैट. वन एट ए टाइम. आज चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कल मैं ओवरकम कर लेती हूँ इसको, राइट? तो वो देखने की नजरिया, तो वो कहाँ से आती है? दिस इज माई स्टेट ऑफ माइंड. तो जब मैं बी मीन्स आई एम नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी अलोन, बट इसको चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, when I am in that consciousness, then I myself is happiness. I don't need some food to make me happy. So that is all pleasures. Pleasure क्या है कि ये साइंस में, साइकोलॉजी में देखा गया है, प्लेजर हार्मोन भी है, हैप्पी हार्मोन भी है, राइट? हाँ, जब आप टेंशन में है, बहुत खाने का दिल हो रहा है, कुछ भी, या कुछ देखने का मन कर रहा है, तो खाने का दिल भी ऐसा होता है कि कितना भी यू आर जस्ट गल्पिंग, लेकिन अंदर कंटेंटमेंट नहीं है ना, आप कितना खाया भी मालूम नहीं, खाते ही जाएंगे. जब स्ट्रेस में है, किसी को नींद बिल्कुल ही नहीं आती, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है. तो ये क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है. अगर मैं कंटेंटेड इनसाइड, देन आई डोंट नीड एनी फूड टू मेक मी हैप्पी. ये हैप्पी हार्मोन कहाँ पर पाया गया है शरीर में? देखा तो एवरीथिंग वी रिलेट विथ द फूड. कोई शरीर छोड़ दिया, उसमें भी फूड की बात है, कोई जन्म लिया, उसमें भी फूड की बात है, किसी की पूजा है, उसमें भी फूड की बात है, कोई आए उनको भी खिलाने की बात है. हर चीज़, हर कस्टम, हर रिचुअल, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फूड. क्योंकि इसके ऊपर जो विजय पाना बहुत बड़ी बात है. एक तो बोलने के लिए भी विजय नहीं है, हमारे मुंह के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और खाने के लिए भी कंट्रोल नहीं है या नहीं? इसकी ही बहुत बड़ी खेल है. बोल के भी कंट्रोल नहीं है, कब क्या बोल रही हूँ कुछ भी मालूम नहीं, अरे बोलना नहीं था. तो जब फूड पाया गया है तो प्लेजर हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, तो वी फील वेरी हाई एट दैट मोमेंट. बट वो प्लेजर हार्मोन या जो प्लेजर चीज़ें हैं, टेम्पररी चीज़ें, दे बिकम एडिक्शन. बट हैप्पीनेस इज नॉट एडिक्शन. आज मेरा मूड खराब है, नेटफ्लिक्स खोली या यूट्यूब खोला, हा, आई फॉरगेट एवरीथिंग. Yes, that's why nowadays we call them mood enhancer. Yeah, Netflix become mood enhancer. और किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे को, सिर्फ नेटफ्लिक्स है और एक चार्जिंग है, बस, राइट? तो वी आर लुकिंग एट द फिजिकल थिंग्स, टेम्पररी थिंग्स. Yes, you are experiencing the pleasure. You are experiencing just short-term happiness. Whereas happiness is not that. That is pleasure.
right? Happiness is something which is beyond this physical things. Yeah? Something which is beyond, which is realizing, recognizing that it is not just the physical thing, I am the being. Human being. Human is the physical body and the being is the soul. So when I understand being part also, not only just human, then it is easy for me to understand that what is happiness actually, what is easy nature. आज मैं किसी से बात कर रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, मैं मीन्स जो टूर गई थी ना, कोई फ़ोन किए थे वो इनविटेशन देख के, पोस्टर देख के, मैंने बोला इज़ योर नेचर हैप्पी, मीन्स मेरे को वो लोग वैसे ही देखते थे, कितना इजी नेचर है, कितना हैप्पी जॉली नेचर है आपका, तो वही टॉपिक इसीलिए रखा है वो लोग इधर आने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हैप्पी लिविंग के ऊपर ही था. तो बोल रहे थे क्यों, वाई डू यू थिंक आई एम हैप्पी, वाई डू यू थिंक आई एम ईजी. Then they said, what we have seen in you, sister, is you were not thinking about yesterday and you are not thinking about tomorrow also. You are just being in the present. Yeah? No expectations about the future, not even any regrets from the past. Because majority of the human tendency is that I am just living in the past. This was another survey which happened in many parts of the world, that human being, how much time they are living in the past. Means just how they are living. And they found out that it is 75% to 78% they are living in the past. मैं ये सुनने के बाद मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने देखा. I was aware for nearly 2 hours. What I am thinking, what I am speaking, what I am looking, everything. If you are aware of what is happening within you and around you, every time you refer to past. And हर बोल आप जो बोलते हैं ना, मैंने ऐसे किया था, कल ये खाया, कल मैंने ऐसे आपसे बात की थे, हर चीज में आप पास्ट का रेफरेंस लेंगे, आप चेक करके देखना. तो आई एम लिविंग नियरली 75 to 78% इन द पास्ट, एंड दे हैव फाउंड दैट नियरली 12 to 13% अ ह्यूमन बीइंग इज लिविंग इन द फ्यूचर. Yeah, right? Future is good. Planning, organizing, everything is good. But not just making plans and not being in the present. Yeah? So one thing which majorly causes unhappiness is not living in the present. And I hardly live in the present and I expect 100% result from the present. How is that possible? I'm hardly putting 12 to 13% in the present and expecting 100% result. Yes, possible. So easy nature, happy nature, it is your own property. It is your own thing. Not the things, not the people, not your post or position, not your people or relationships or your boss or your subordinates. No, no one will give you happiness. It is how I look at them. Recently, I was listening to an experience of a person from Africa. I don't know if I shared this experience previously anytime. He was saying he was posted to some country in Africa, very little islands and very third world countries. Yeah. And he was working in a shoe company. He is from India. He is working there. So he was working in a shoe company, and the shoe company has delegated him to go to some place
the Aborigines, where they don't know about the shoes at all, to go and promote the shoes there. And 2 people were sent there. This was one Brahma Kumar brother who practicing Raj Yoga meditation. He and another person also been there. And when he came back, he got the promotion in his job. I said, how was that possible? He said, that was very easy, sister. अच्छा, कैसे? तो उन्होंने बोला, अगर किसी को ऑलरेडी शू के बारे में मालूम है तो उनको हमारा शू प्रमोट करना मुश्किल, राइट? क्योंकि उनको जो कंफर्ट चाहिए, उनका साइज जो चाहिए, उनका कलर जो है चाहिए, या आउटलुक कैसे होना चाहिए, वो सब जो है ना, वो प्रमोट करना बड़ा मुश्किल है. उनको शू का मालूम ही नहीं है, because they never wear shoe. So it was easy for me to teach them what is the benefit of wearing the shoe. एक तो लुक बहुत अच्छा रहेगा, एक तो आप बहुत सेफ रहेंगे, एक तो आप पैदल भी चलते हैं या पहाड़ी भी चढ़ते हैं तो बहुत ग्रिप रहेगा, and you will be protected from so many other things. So I promoted like that and it was very good success. And he got the promotion when he came back from that project. And I said, what happened to the next one who went with you? No, he left the job. I said, why? He said, because he said, अरे इनको कल्चर ही नहीं है शू पहनने का, इनके पास कैसे हमें प्रमोट करो, मेरे से नहीं होता भाई, वो चले ही गए. Situation was same. Yeah, but the way how you look at that situation makes all the change in your life. हाँ या ना? हाँ? तो it is all the comfort here, easiness here, peace and love and happiness is inside. It is not something which is external, right? तो मैंने अभी जो गई थी ना, सेवा का टूर था, बहुत अच्छा सा टूर था, तो 4 कंट्रीज में गए थे. तो बहुतों के पास तो टेंशन वाला जीवन, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगापुर का, बहुत वर्क कल्चर डिफरेंट है, बहुत प्रेशर में जी रहे हैं लोग. और कुछ कंट्री ऐसा है पूरा ऑपोजिट है. ऑस्ट्रेलिया में उनका वर्क कल्चर ही अलग है, उनका हैप्पीनेस ही अलग है. एक बात तो बड़ा अच्छा लगा, 5 बजे को दुकान बंद, सब मार्केट्स बंद, 5:30 मैक्सिमम, सब दुकान बंद, सब सुपरमार्केट्स बंद या सब मॉल्स बंद, सब कुछ बंद. I said, how it is possible? इंडिया में तो वो प्राइम टाइम है, शाम को 9 बजे 10 बजे तक भी हमारे शोरूम्स चलते रहते हैं. नहीं नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा सा दिखाएंगे आपको, जो भी चाहिए सब कुछ दिखाएंगे पहले से. 5 बजा, बहुत प्यार से आपको बोलेंगे 5 बजा है प्लीज़, या? तो इनका वर्क कल्चर ही अलग है. They are happy, they are contented with whatever they are having. So it's all how you look at them, right? हाँ, of course बहुत सारे पैरामीटर्स है वो सब मिला के, लेकिन ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, आज ये टॉक इसीलिए रखा है कि कहाँ पे और भी है हम, इंडिया की या जीवन पद्धति या जीवन शैली एक प्रकार के है, या विदेश के लोग कैसे रहते हैं, या कैसे ब्रह्मा कुमारी इसको या मेडिटेशन को अडॉप्ट किया है, यह आप सभी को जानकारी देने के लिए. क्योंकि हर बार आप सुनते हैं कि 131 कंट्रीज़ में, ज्योति बहन आज भी बोल रहे थे कि अपने ब्रांचेस हैं, वैसे 140 कंट्रीज़ हो गए हैं अभी. तो कैसे ये स्पिरिचुअलिटी को आप वो लोग होल्ड कर रहे हैं अपने जीवन में, ये बहुत सुपर फैंटास्टिक थिंग है देखने के लिए. क्योंकि हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हो या ऐसे शांति का जीवन जीना या वेजिटेरियन डाइट लेना,
ये सब अपने लिए है, इट्स नॉट फॉर देम, लेकिन कैसे अपने जीवन में लेके आए हैं ये देखने वाली चीज़ थी। तो हमारा पूरा 35 डेज़ का टूर था। तो स्पेशली तेलुगु कम्युनिटी की सेवा के लिए बुलाए थे। सभी कंट्रीज़ में तेलुगु एसोसिएशंस जो भी है वो लोगों से मिलने के लिए गए थे। तो सिंगापुर में तो मेनली तेलुगु एसोसिएशन वाले आए थे अपने प्रोग्राम में, लेकिन ऑर्गेनाइज किया था अपने ही सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का। बहुत एक्टिव प्लेस है सिंगापुर में ब्रह्मा कुमारीज का। आफ्टर कोविड थोड़ा सा ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो वहाँ पर इतना टेंशन स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हुए भी कैसे बाबा के बच्चे, बहुत प्यार से बाबा मना भगवान को हम कहते हैं, तो बाबा के बच्चे जो है ब्रह्मा कुमारीज में जो है वो लोग कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जीवन में कैसे ला रही है, दैट वाज वेरी नाइस। क्योंकि नियरली 120 बाबा के बच्चे हैं वहाँ पर जो मीन्स रोज क्लासेस में आने वाले। बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन संडे को सब लोग मिलते हैं, एवरी संडे को मिलते हैं। अपना क्लास जो होती है स्पिरिचुअल क्लास, जो मॉर्निंग सेशन होता है, अपना डिस्कोर्स जो जिसको मुरली हम कहते हैं, उसमें 120 तक आते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा वो फैमिली को देख के। और स्पेशली वहाँ पर अपने तेलुगु कम्युनिटी के भाई बहने जो कोविड में बाबा के बच्चे या स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाए हैं, दे वर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल रिट्रीट। मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ्स में बाद में दिखाऊंगी। तो वो लोग जो है एक प्लेस, रिट्रीट प्लेस हायर किए थे, वो एकदम समुंदर के पास था। और हमें मालूम नहीं था, पहले वो लोग जब प्लान किए थे उनको भी मालूम नहीं था, वो फुल मून डे था और वो समुंदर के किनारे और फुल मून डे, एंड यू आर बीइंग इन अ प्लेस वेयर you are not seeing any people or anything, just ocean and nature, nothing else. So it was very refreshing, it was very joyous moments because they all were together and बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट हुआ था। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसा चीज़ है, मेडिटेशन ऐसा चीज़ है जो आपके दिल को बहुत राहत देती है, बिकॉज यू आर विथ lot of pain, lot of stress, lot of confusion in the life. तो वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी रोल होती है। और फिर हम मलेशिया में गए थे, वहाँ पर सिर्फ 5 दिन ही थे, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स तेलुगु एसोसिएशन का भी था, और ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज जो तेलुगु वाले थे उनका भी बहुत बड़ा मीन्स रिट्रीट वगैरह सब चला था। तो मेनली मेंटल वेलबीइंग के बारे में उनके पास था, क्योंकि वही टेंशन वाले जीवन, तो वहाँ पर वो टॉपिक के ऊपर था। और मलेशिया में जो है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ मलेशिया, तैम कहते हैं, तो उनका बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और मुझे देखने के लिए बहुत खुशी हुई एक बात की कि कैसे भारत से गए, कुछ जनरेशन्स पहले भी गए हैं, लेकिन हाउ दे आर स्पीकिंग तेलुगु ओनली। जब ये कैंपस में आते हैं वो लोग ओनली तेलुगु ही बात करना है। और इवन द स्टेज कोऑर्डिनेटर, एवरीवन, दे जस्ट ट्राई टू टॉक इन तेलुगु ओनली। और बहुत शब्दों को ढूंढते हैं बेचारे, दे सर्च फॉर द वर्ड्स बिकॉज उनका वोकैबुलरी इज वेरी लिमिटेड। लेकिन उनको जो प्यार है भारत से या जो अपना कल्चर से, बहुत अच्छा लगा उनको देखे तो। और जो भारत के जो गीत है, तेलुगु के जो गीत है, या लैंग्वेज सीखने का, टीचर को रख के फिर सीख रहे हैं, बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, ये सब बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर भी 2 प्रोग्राम तेलुगु एसोसिएशन वाले ही रखे थे, और उनका उगादी का प्रोग्राम था। हमारे पास तो उगादी ख़त्म हो गया, बहुत समय हो गया, लेकिन वो लोग 2 महीने तक चलाते हैं उगादी, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके वो लोग मनाते हैं।
तो बहुत अच्छा सा कलश स्थापन भी किए या दिया भी जलाए, जो हम यूजुअली उगादि पचड़ी जो भी बनाते हैं सब कुछ ऐसे बना के बहुत अच्छा सा उनका भी प्रोग्राम था। और वर्किंग डे में रात के टाइम पर 7:30 से प्रोग्राम्स था उनका, क्योंकि वर्क से आने के बाद 9:30-10 बजे तक बैठे थे। और दैट वाज वेरी हाईलाइटिंग प्रोग्राम के 100 लोग आए थे तेलुगु वाले वहाँ पर। कोलमपुर में जो मेन ब्रांच में हुआ था उसमें बड़ा अच्छा लगा उनको भी। और वहाँ पर भी उगादि के बारे में हाउ इट इज़ रिलेवेंट फॉर डेली लाइफ एक्चुअली, हाँ वो सब बातें उनको भी सुनाए और उनको भी बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। और नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का मेन रिक्वेस्ट था अपने पास, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ब्रह्मा कुमारीज वो लोग बुलाए थे। तो हम स्पेशली 3 सिटीज़ में तेलुगु प्रोग्राम्स प्लान किए थे। फर्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था मेलबर्न में ब्रह्मा कुमारीज लगभग 9 लोग हैं जो रेगुलर क्लासेस में आने वाले हैं, वो लगभग 9 लोग हैं। तो उनके रिक्वेस्ट था कि कोविड के बाद ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करने का। तेलुगु कम्युनिटी बहुत सारे हैं और आई वाज सो हैप्पी सीइंग मैनी इंडियंस देयर, क्योंकि समर वेकेशन है और इतना अपने पास कल्चर हो गया विदेश में जाके घूमने का, तो हर जगह पर वही था। हाँ वही देख रहे थे। दिखाएंगे 1 मिनट। तो उसके बाद जो था स्पेशली मैं अपने जो रिट्रीट सेंटर्स है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा के कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स और कैसे वो लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मैन पावर बहुत कम है और डेडिकेटेडली सेवा करने वाले बहुत कम है। लेकिन कितना अपने अंदर वो जुनून होना चाहिए या कितना अपने अंदर वो प्यार होना चाहिए ह्यूमैनिटी के प्रति, तब जाके सेवा कर पाते हैं। वो वहाँ पर मैंने देखा। मैं जहाँ पर ज़्यादा टाइम वहाँ पर थी, एक पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर करके बाबा का बहुत बड़ा सा रिट्रीट सेंटर है। वहाँ पर जो है सिर्फ 8-9 लोग ही हैं स्टाफ। और ये प्रॉपर्टी जो है एक लगभग 22-23 एकर्स का बाबा का बहुत बड़ा सा बुशलैंड है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ भी जाओ सिर्फ जंगल 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 ही देखते हैं ना, तो बाबा का भी प्रॉपर्टी ऐसा है। कुछ प्लेस जो है बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ और हर जगह पर जैसे कि हर एरिया को मेंटेन करके रखा है इतने बड़े एरिया में। और सब बुजुर्ग है, ये मेरे को बहुत टचिंग हुआ। जो सेंटर की इंचार्ज दीदी है 87 इयर्स यंग, 87 years young, and all other brothers and sisters were aged only. लेकिन उनको कितना प्यार था बाबा के प्रति या बाबा की सेवा के प्रति। जो बाबा के बच्चे आते हैं या जो भी प्रोग्राम्स में आते हैं, इट्स नॉट ईजी। हाँ, एक जीवन देना वो अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना जीवन को निभाना, हाँ, क्योंकि अभी बोल रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिव्स प्रेशर, हियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिविंग देम हैप्पीनेस। कितना चेंज होना चाहिए माइंड में, हाँ है या नहीं। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर। तो सिर्फ इसके लिए कि आप जस्ट देखो कैसे है और कितना वो नेचर से क्लोज्ड है। एक हैप्पीनेस के लिए एक बात है, आप जितना नेचर से बहुत क्लोज रहेंगे ना तो आप बहुत अच्छे फील करते हैं। मैंने यही देखा कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में देखो पूरा ग्लास पैलेस जैसा है, इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल बात है। There is a sense of peace that supports the knowledge of spiritual self, taught in workshops and seminars, along with the core Brahma Kumari's core curriculum courses in Raj Yoga meditation, which provide the methods to achieve a stable mind for all seasons.
waterfall भी है. At the core of the Brahma Kumari's work is the understanding of the connection between our consciousness, our thoughts and actions, and their impact on the world. It has been seen that long-lasting change in any social or environmental system starts with a profound shift in the minds and hearts of people. The current environmental crisis is therefore a clear call to transform our awareness and lifestyle. Sustainable lifestyle. Adopting a less materialistic She is lifestyle 83. and increasing the use She of is clean 83 and she energy looks after whole kitchen. saves the planet's resources and brings greater well-being. बहुत ठंडी है ना, फायरप्लेस पूरा टाइम चलता Plant-based रहता है. diet. ये देखो अपने गार्डन में बनाते हैं ये मीन्स Food that is plant-based and cooked with love nourishes our whole being and brings inner clarity. It contributes to the health and future of the planet by reducing our carbon footprint. Meditation. Spending time in silent reflection or meditation helps us to connect with our deeper values and find the strength to live by them. Enabling us to be more mindful of the impact of our choices. Peaceful living. Promoting and living by the principles of universal peace can lead to less violent conflicts and wars. Thus enabling vast resources to be redirected to creating a healthy and sustainable society. हल्दी. Om Shanti, which is a greeting She of is, peace. the We're very sister in happy to charge, bring to you this Sister Jacqueline, place in which 87 our years. environment complements what we teach here, an attitude and thoughts about peace. So we care for the environment and we give the experience of that in our environment as we care for it. Changes in consciousness mean we will make changes in lifestyle and diet. And that will start reversing the impact of climate change. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा. मैं इतने बार वो घर में घूमी, इतने बार बाहर भी घूमी हूँ. एक एक चीज़ आई जस्ट स्टार्टेड लविंग द प्लेस एंड एवरीवन. क्योंकि आपने देखा वो बहन जो थी पेगी, उस 83 इयर्स कुछ है, एंड शी लुक्स आफ्टर ऑल द किचन, राइट. इट्स नॉट अ जोक.
हाँ, जो आने वाले जाने वाले और इतना प्रोग्राम्स चलता है, एंड शी हैज़ द पैशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. शी डेकोरेट्स एवरी टेबल फ्लावर्स के साथ और हर हफ्ता चेंज करते हैं. तो कितना पैशन, कितना जुनून होना चाहिए तब कर सकते हैं. एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट लॉट ऑफ इनर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन लाइफ. और जो खेती कर रहे हैं, दे आर नॉट फुल टाइमर्स. दे वर्क हार्ड, नॉट जस्ट IT कंपनी. दे वर्क हार्ड, मीन्स फिजिकली वर्किंग हार्ड. और घर में आने के बाद शाम से रात तक इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे किचन गार्डन, कभी कभी तो पूरा रिट्रीट के लिए भी खाना मीन्स वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, इतना सारा उगा रही है. तो मैंने बोला व्हाट वाज द रीज़न, क्योंकि इंडिया में तो आप सब कुछ नहीं करते थे. नहीं दीदी, यहाँ पर आने के बाद लगता है कुछ तो अपना पैशन रखना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रह पाते हैं इधर. तो हमने गार्डनिंग का पैशन लिया. तो वी आर एक्सपीरियंसिंग सो मच हैप्पीनेस. जॉब से आते ही पहले आधा घंटा खेती में जाएंगे, तब हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं. फिर कुछ ना कुछ करते हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है. तो ये कितना नेचर के साथ जब जुड़ेंगे, वो मैंने वहाँ पर बहुत देखा. क्योंकि किसी किसी प्लेस में दे आर जस्ट लिविंग अलोन, इधर एक उधर एक, ऐसा. हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम बाजू वाले घर से लोगों से बात करने के बिना रह नहीं सकते. या कोई नहीं मिले फ़ोन में भी, तो कोई नहीं है सामने तो फ़ोन भी तो मिला देते हैं. और जहाँ पर यहाँ पर देखा मैंने 3 किलोमीटर्स अ नेबर, कोई है ही नहीं है आजू बाजू में. तो हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे आर बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड. मतलब मैं नहीं समझती हूँ उनको नेटफ्लिक्स चाहिए या लोग चाहिए तभी खुश कर देते हैं. इट्स ऑल हाउ यू लुक एट द थिंग्स. हाँ, सेफ्टी क्या चीज़ है वो सब अलग बात है, वो सब होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग ऑल दोज थिंग्स, बट जस्ट आई एम लुकिंग एट देयर पर्सपेक्टिव, हाउ दे आर लिविंग हैप्पीली. तो हैप्पीनेस इज नॉट विद द फिजिकल थिंग्स एंड एनवायरनमेंट, इट्स ऑल इंटरनल थिंग्स. मैंने पूछा, ये सब देखने के बाद मैंने बोला, इसीलिए आप एक जगह पर भी स्ट्रेस फ्री लिविंग का क्लास ही नहीं रखा. उनको ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रेस फ्री लिविंग. यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारी इसको पूछते हैं, दीदी स्ट्रेस मैनेजमेंट कराओ या तो वर्क लाइफ बैलेंस कराओ. उनका बैलेंस क्या बात है ही नहीं है. मतलब दे केप्ट वर्क सेपरेट एंड आई एम सेपरेट, whereas we are making them together. Yeah, I'm not saying don't keep them together. You have to live in work also. It is not like life is separate and work is separate. You are there all the time. Work and life is there together. But how you are having that consciousness, awareness is main thing. तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चले थे अपना मीन्स ऐसे नए लोगों के लिए और जो BKS है उन लोगों के लिए. और सेकंड डेस्टिनेशन था सिडनी में. मीन्स यहाँ पर भी और एक रिट्रीट सेंटर है यारा वैली करके, जहाँ पर कोविड के टाइम पर वो रिट्रीट सेंटर मतलब बाहर वालों का है. उनका कल्चर है रिट्रीट्स में जाना. वीकेंड्स में कोई घरों में नहीं रहते, नेचर वॉक्स, बुश वॉक्स में जाते या ट्रैकिंग में जाते, ऐसे जीवन है. मतलब नेचर के साथ ही जुड़ने वाला जीवन है सभी के लिए, नॉट ओनली BKS, सभी का जीवन ऐसा है. तो वहाँ पर एक रिट्रीट सेंटर है यारा वैली करके, बहुत अच्छे सुंदर स्थान पर है, जहाँ पर हज़ारों कैंगरूस अपने कैंपस में ही है और उनको मालूम है ये सेफ प्लेस है. मैंने सुना कि एक ही कंट्री इन द वर्ल्ड है जो अपने नेशनल एनिमल को यूजुअली अपने नेशनल एनिमल को खाते नहीं है कोई भी कंट्री वाले. ये एक ही कंट्री है क्योंकि इतने कैंगरूस हैं वहाँ पर.
तो कहाँ पे जाओ उनको थ्रेट ही है, लेकिन अपने कैंपस या बाजू के कैंपस ऐसे है कि जहाँ पर ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा, कहा वहाँ पर इतने सारे कैंगरूस है, इतना सारा चहल पहल है उसका, बहुत सारे एनिमल्स लिविंग टुगेदर और बहुत सेफली। आई वांट टू जस्ट शो द ग्लिम्स ऑफ दैट रिट्रीट सेंटर ऑल्सो। यारा वैली ये नहीं है, यही है यारा वैली। हाँ, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है बाबा का, वो किसी ने दिया है कि आप चलाओ कोविड के बाद। साउंड नहीं, साउंड। Nestled on 40 acres, the Yarra Valley Living Centre is a simple yet comfortable boutique retreat experience. Filled with wildlife, the property boasts a variety of beautiful native birds and Australian animals whose presence contributes to the relaxed, nurturing, healing and peaceful environment. ये सब फ्रूट ट्रीज है। At the core of the Brahma Kumari's work is the understanding of the connection between our consciousness, our thoughts and actions, and their impact on the world. It has been seen that long-lasting change in any social or environmental system starts with a profound shift in the minds and hearts of people. The current environmental crisis is therefore a clear call to transform our awareness and lifestyle. Sustainable lifestyle. Adopting a less materialistic lifestyle ठंडी है तो and ऐसे increasing the use of clean energy saves the planet's resources and brings greater well-being. We've also been given a grant to plant comfrey plants along the banks of the river because their very long roots extract nitrogen from the excess fertilizer that's in the soil. And so in this way we are stopping excess chemicals going into the water supply, into the little Yarra River. Plant-based diet. Food that is plant-based and cooked with love nourishes our whole being and brings inner clarity. It contributes to the health and future of the planet by reducing our carbon footprint. Meditation. Spending time in silent reflection or meditation वहाँ पर 4 लोग helps us देखते हैं to पूरा connect retreat with our center को। deeper values and find the strength to live by them, enabling us to be more mindful of the impact of our choices. Peaceful living. Promoting and living by the principles of universal peace can lead to less violent conflicts and wars, thus enabling vast resources to be redirected to creating a healthy and sustainable society. ये अपने कैंपस में ही
We are on a 40-acre property between two other properties of the same size. And what is unique is that kangaroos, white deer, wombats, and the odd koala, they can roam freely between these three properties because they're protected. We're also a refuge for wildlife, and the Waratah Wildlife Association bring their healed wildlife here because they know that we will be a sanctuary for them. So it's wonderful that we can live in co-creation, cooperation, cohabitation with nature in these ways. Changes in consciousness mean we will make changes in lifestyle and diet. And that will start reversing the impact of climate change. मैंने ये वीडियोस इसीलिए लिया कि इसमें वो हाउ दे आर अडेयरिंग विथ इंडियन कल्चर, जो अपना जो पुराने जो कल्चर है ये सबसे कैसे है ये दिखाने के लिए। तो ये दोनों रिट्रीट सेंटर एक ही सिटी में, इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, और ये रिट्रीट सेंटर में सिर्फ 5 ही लोग हैं, वो देखते हैं पूरा घर, हर चीज़। मीन्स फायर प्लेस में वुड डालने के लिए इतने सारे पेड़ गिरे हुए, उससे कट करके ले आने से लेके हर चीज़ घर का। ओनली 5। हाँ, तो ये मेन देखने को मिला। वही मैं बोल रही थी, कितना पैशनेट होना चाहिए सेवा के प्रति, या कितना अपने जीवन को ऐसा बनाना, तब हम जाके कर सकते हैं। और इतने ठंडी प्लेसेस एंड इतना हिल्स एंड वैलीज हैं, यू हैव टू वॉक ऑल द टाइम। और ऐसे चीज़ें हैं, नो वेयर यू विल फाइंड द लिफ्ट, क्योंकि हर जगह पर ऐसे अप एंड डाउन सी है, कहाँ पे अप लिफ्ट डालने की मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसे लैंडस्केपिंग है। और फुल टाइम एज्ड सब कुछ करते जा रहे हैं, और कहाँ भी हम या आप, ये आप करो, ये मैं करूँ, नहीं, कहाँ भी आई डिड नॉट सी। और मेरा ये है तो तेरा ये है ना। रियली अमेजिंग पीपल, रियली अमेजिंग सर्विसेज विच आर हैपनिंग। इसीलिए आज यहाँ पर वो टॉक रखे कि हम जानने लायक चीज़ें हैं, राइट। तो सेकेंड डेस्टिनेशन था हमारा सिडनी में। तो सिडनी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन हमारा कैसा था कि पूरा टाइम फ्लाइंग विज़िट, डायरेक्ट प्रोग्राम में जाओ, फिर फ़्लाइट में बैठो, दूसरे सिटी में जाओ और एक प्रोग्राम कराओ, फिर आओ, ऐसा था। बहुत इंटेंस प्रोग्राम था, हर जगह पर बहुत इंटेंस प्रोग्राम था। तो सिडनी में भी 2 रिट्रीट सेंटर्स है बाबा का, और आप सुन के परेशान हो जाएंगे कितनी बड़ी रिट्रीट सेंटर, 130 एकर्स लैंड, एक रिट्रीट सेंटर। और वहाँ पर भी 8 लोग हैं संभालने के लिए। और ये तो बिल्कुल ऐसी जगह पर है, इतनी ठंडी। आप हम यूजुअली फील करते हैं कि हैदराबाद सिटी का और शांति सरोवर का जो टेम्परेचर्स है 2-3 डिग्री चेंज रहता है, यहाँ पर कम रहता है सिटी से देखेंगे तो। और वहाँ पर हमने देखा 10 डिग्रीज कम है सिटी से, मतलब कितना ठंडी है। हम जब गए 4 था टेम्परेचर, बहुत ठंडी का टाइम है, मतलब अभी आने वाला टाइम तो और भी ठंडी का टाइम है। तो बहुत लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स एंड एवरीवेयर यू सी अप्स एंड डाउन्स, और पूरा टाइम दे आर ऑन द टोस एंड सेवा 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 सेवा। और ये प्लेस में ये सिडनी का ब्लू माउंटेन्स बहुत फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे। बहुत बड़े बड़े वैल्यूस एंड हिल्स है,
बहुत बड़ा सा नेचर का वो स्पॉट है। लोग यूजुअली सिडनी जाएंगे तो ये ब्लू माउंटेन्स देख के ही आते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा विलेज है लूरा, वहाँ पर बाबा का बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर, और ये नए भी नहीं है, लगभग 2000 से है वो रिट्रीट सेंटर। और इसके पहले जो बैक्स्टर आपने देखा पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर, वो 96 से है। इतने सालों से मेंटेन करना कितनी बड़ी बात होती है। हाँ, इट्स नॉट ओनली आप जो बाहर देखते हैं वही चीज़ें नहीं हैं, घर सेट करना या कमरे सेट करना, एक एक बेड को सेट करना, और इतनी ठंडियों में कितने सारे क्विल्स या रजाइयाँ यूज़ करते हैं, फिर वॉशिंग, फिर प्रिपेयरिंग द बेड्स, एवरीथिंग। हाँ, तो और एक रिट्रीट सेंटर का भी मैं दिखाना चाहती हूँ, ब्लू माउंटेन्स। या दिस इज़ रियली वंडरफुल। Our Centre for Spiritual Learning in Lura was found in the year 2000. एक मिनट पॉज करो, And every जस्ट गो बैक लिटिल बिट। मैं फिर फोटो भी दिखाऊंगी उसका, लेकिन हाँ, और थोड़ा सा आगे एक स्टोन कॉटेज है। ये पहले दूसरों का प्रॉपर्टी था, फिर हम center- खरीदे हैं। और थोड़ा सा आगे ओके, वो एक स्टोन कॉटेज करके है। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का एक कॉटेज बनाया है, सिर्फ नहीं, इट्स ओके। वो बाहर से देखने के लिए एकदम, मैं फोटोग्राफ भी दिखाऊंगी आपको। वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मैरिजेस भी हुआ है पुराने ज़माने में, वो सब बोल रहे थे। तो बहुत टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का है, और बाबा के घर में ही क्रीक्स हैं, और बहुत अच्छे से पहाड़ियों का है, और बुशलैंड्स है, और बहुत सारे रिट्रीट्स भी कंडक्ट करते हैं, गार्डनिंग का, ये सब का। तो पहले देखेंगे, मैं फिर बाद में बताऊंगी। Our Centre for Spiritual Learning in Lura was found This in is the Stone year Cottage. 2000, and everyone immediately fell in love with it. To this day, silence is the gift people feel on entering our Blue Mountains home. Located on 132 acres of rugged bushland, the natural surroundings support an easy entry into solitude and introspection. With 2 halls, it's possible to host 2 retreats every weekend. We run meditative gardening retreats each season, and we teach the meditation, and then the participants put that into practice while they're gardening here in this beautiful garden. So they teach them. We also run retreats for environmental professionals. These retreats are to offer them some support for the very good work that they're all doing. At the core of the Brahma Kumari's work is the understanding of the connection between our consciousness, our thoughts and actions, and their impact on the world. It has been seen that long-lasting change in any social or environmental system starts with a profound shift in the minds and hearts of people. The current environmental crisis is therefore a clear call to transform our awareness and lifestyle. Sustainable lifestyle. Adopting a less materialistic lifestyle and increasing the use of clean energy saves the planet's resources and brings greater well-being. We're quite lucky here because we have a natural spring just up the top of the ridge there, and we find that quite beneficial obviously for our health, because we don't want to drink chlorine and fluoride. It comes in tap water. Meditation. Spending time in silent reflection or meditation helps us to connect with our deeper values and find the strength to live by them, enabling us to be more mindful of the impact
of our choices. At Brahma Kumaris, we meditate, and that brings us peace and love and care, and it helps others and it helps the environment. Plant-based diet. Food that is plant-based and cooked with love nourishes our whole being and brings inner clarity. It contributes to the health and future of the planet by reducing our carbon footprint. The food here is a holy food, cooked with lot of love. Whole vibrational aspect that goes into the food. Full of energy And love. I love the food here. I love the food here. I love the food here very much. Peaceful living. Promoting and living by the principles of universal peace can lead to less violent conflicts and wars, thus enabling vast resources to be redirected to creating a healthy and sustainable society. Our land adjoins Blue Mountains National Park, which is a World Heritage Area. So we very much see ourselves as caretakers of the environment here. We have a land care group and they weed along the creek and make sure that the weeds don't go into the national park. And we've also been planting native plants to hold the banks together. Changes in consciousness mean we will make changes in lifestyle and diet. And that will start reversing the impact of climate change. Wonderful! Happiness! Beautiful! तो ये 5-6 लोग ही रहते हैं, पूरा रिट्रीट सेंटर संभालते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मेरे को उनको देखे तो, इतनी ठंडी है और नाइट लाइफ इज़ नाइट इज़ वेरी अर्ली। 5 बजे को पूरा डार्क, 4:30 बजे से पूरा डार्क हो गया और बहुत लंबा टाइम मीन्स रात, फिर भी वो लोग रात को भी इतनी सेवा कर रहे हैं। और एवरी वीकेंड 2 रिट्रीट्स और 2 अलग अलग वीकेंड्स 2 अलग अलग हॉल्स में चलता और सभी को संभालना। भले कुकिंग के लिए दूसरे सेंटर्स से जाते हैं भाई बहनें बनाने के लिए, फिर भी घर वालों की जिम्मेवारी तो बहुत रहती है ना, वो लोग जा के बना के आ जाते हैं, बाकी सब चीज़ें तो अपने लोग ही करना पड़ता है घर वाले। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर लास्ट डेस्टिनेशन था मीन्स ब्रिस्बेन में भी था हमारा, सिर्फ 1 दिन 2 रात थी, तो उसमें भी पब्लिक प्रोग्राम्स हुआ, ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम्स हुआ, रेडियो टॉक्स भी हर जगह पर होता था, तो बहुत अच्छा था। फिर लास्ट में इंडोनेशिया में और कोई कल्चर नहीं है, मतलब इंडियन कल्चर नहीं है, क्योंकि उनका अपना ही कल्चर है। तो वो भी वहाँ पर बाबा का बहुत बड़ा सा स्थान, 1000 बैठने का हॉल, 1000 लोग बैठने का हॉल और लगभग 30 लोग रहने का व्यवस्था है। मीन्स रिट्रीट सेंटर नहीं है, नॉर्मल सेंटर ही है, लेकिन बहुत बड़ा सा एक्सपैंड किया है। और वो लोग भी बाबा को बहुत अच्छे से प्यार से अपने जीवन में लाए हैं। तो वहाँ की जो बहन है ना, जानकी बहन करके, इंडियन बॉडी है लेकिन वहाँ की है, मलेशिया की बहन है। शी इज़ 82 and she is just spreading that motherly love and increasing Baba's family there. तो वो भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर भी सेवाएं काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। तो बोलने का यही है कि it's not only in India, not only we who are doing all these things, but out there world is embracing this lifestyle, embracing the spirituality, because that is only solution for the life. I just want to show few photographs
भैया दिखाना। अच्छा मेरे पास ये बहुत सारे पोस्टर्स हैं प्रोग्राम्स के डिफरेंट। हाँ, ये रिट्रीट सेंटर जो आपने देखा पहले, पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ पेनिनसुला रिट्रीट सेंटर, मेन गेट, सो ब्यूटीफुल एंड फिल्ड विथ लॉट ऑफ ग्रीनरी, जंगल और बड़े बड़े ट्रीज, हर जगह पर बड़े बड़े ट्रीज हैं। ट्रीज नाइस एंट्रेंस, वेलकम। तो ये आप वीडियो में भी देखे थे, ये पूरा प्रॉपर्टी पोस्ट कॉलोनियल बिल्डिंग है, तो 45 इयर्स 50 इयर्स का बिल्डिंग, लेकिन ये लोग कितना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ये बात है कि उनका जो फर्नीचर है सब उसी ज़माने का है, कारपेट से लेके, और इतना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास मीन्स एंटिक चीज़ों का बहुत मान है उन लोगों के पास, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है ना। हम हर साल फर्निशिंग चेंज करवाते हैं, आपके सोफ़े को ये वो चेंज, लेकिन वो लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो डिफरेंट स्पेसेस है ये सब, ऐसे है रूम्स 2 बेड वाला, लेकिन वो लोग मेनली एक ही जगह एक व्यक्ति को ही देते हैं। तो वहाँ का ये फैमिली है, 7-8 लोग रहते हैं वैसे, तो यही सब आप देख रहे हैं कितने एज्ड है। तो हम आने के टाइम की ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो जब निकल रहे थे इट वाज लाइक फैमिली, तो दे वर ऑल्सो फीलिंग इन द सेम वे। और ये है सिडनी का मेनली जो वहाँ का पूरा देश का जो इंचार्ज भाई है, यहाँ पर एक ही भाई देख रहे हैं आप, वो चार्ली भाई करके, अभी सितंबर में यहाँ पर आने वाले हैं। संडे टॉक भी उनका रहेगा, आप सब देखेंगे। बहुत प्यार वाले भाई, भले भाई के शरीर में है लेकिन बहुत प्यार से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व भ्रमण करते हैं, सभी की सेवा के लिए जाते रहते हैं, लेकिन यू डोंट सी एनी अदर एक्सप्रेशन अदर देन हैप्पीनेस एंड स्माइल ऑन हिज फेस। तब भी हम जब गए तो पूरा यूरोप का टूर था, वो उसी टाइम पर पहुँचे थे। तो भाई जी है और वो मेन कोऑर्डिनेटर है पूरा देश का, तो भाई जी को हम राखी भी पहनाए थे। तो ये है, आप देखा ये रिट्रीट सेंटर, लूरा रिट्रीट सेंटर का एंट्रेंस, ये है ब्लू माउंटेन्स। पूरा आप जितने आँखों को दिखता है उतना तक सिर्फ और सिर्फ जंगल और वैली से देखते हैं, सिर्फ वही देखते हैं। ये ब्लू माउंटेन्स का फेमस स्थान है, पीछे आप 3 माउंटेन्स देख रहे हैं, 3 सिस्टर्स कहते हैं, वो फेमस प्लेस है, लोग यूजुअली वहाँ पर जाते हैं, और बाबा के घर के अंदर ही ये सब चीज़ें हैं। ये भी वहाँ अपना रिट्रीट सेंटर ही है। तो ये स्टोन कॉटेज जैसे मैंने बताया, वो स्टोन कॉटेज है, वहाँ पर भी एक हॉल है अंदर। ये बाहर से देखे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है वहाँ। और उनका देखो क्रिएटिविटी कितना है, हर पेड़ को एक एक शेप में कार्व करके रखे हैं, अपने ही भाई लोग जो बनाए हैं। और कहीं कहीं ऐसा है कि 3-4 पेड़ों को एक मीन्स एक सिटिंग एरिया जैसे बनाए हैं। बहुत सुंदर सुंदर हाथ की कला देखो कितनी अच्छी है। और ये यारा वैली रिट्रीट सेंटर आपने और एक वीडियो भी देखा था मेलबर्न में, तो उसका एंट्रेंस है ये रिट्रीट सेंटर है। और यहाँ पर ही है बहुत सारे कैंगरूज, हज़ारों कैंगरूज बाबा के घर में ही है। ये पूरा प्लांट ट्रीज है, आई मीन्स फ्रूट गार्डन्स है, इसमें एप्पल्स है, पेयर्स है, बहुत सारे वहाँ के वेराइटीज़, बहुत सारे, ये पूरा वही है, कुछ एकर्स ऑफ लैंड। Now this only springtime, I think.
late winter, baby time. I think. No, till my baby come out. Nothing like that. बहुत पास से मतलब समर में मीन्स बाहर नहीं आते हैं गर्मियों के टाइम पर, फिर भी उस दिन गर्मी थी तो भी दिन में थोड़े दिखे थे हमको जब हम गए थे. Come here. Come. देयर स्टैंड स्टिल. आप फोटोग्राफ जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन ऐसे ही रहते हो. No, they are not dangerous. If we harm them, उनके जो टेल है वही उनका वेपन है. वो टेल इतना ताकतमंद है, उससे ही मतलब they beat, means they use their tail. That is like a fifth leg for them. पूरा उसके ऊपर ही वो जंप करना ये सब है. He is yawning. बहुत बड़े बड़े, इतना मेरे हाइट से भी ज़्यादा. ओ दूसरे जगह पर होल्ड कर सकते हैं लेकिन ये इतना नज़दीक नहीं आए. शाम के टाइम पर आते हैं नज़दीक, लेकिन ये समर मीन्स में दिन में गई थी. బట్ ఆర్మ్స్ అంతా చూడండి, చేతులు ఆల్ఫా మేల్కి అవి పౌచ్లో అది ఉంది, అది పిల్లు ఉంది, అది కానీ తిరిగి. तो पूरा ग्रीनरी है वो. आपने देखा ना वो रिट्रीट सेंटर पूरा, कहाँ भी जाओ. ये और एक रिट्रीट सेंटर जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस. ये एक मेलबर्न में ही तेलुगु एसोसिएशन वालों का प्रोग्राम था, वो लोग ये ऑर्गेनाइज़ किए थे. और सेम टाइम पर मोदी जी का विज़िट था, तो बहुत सारे वहाँ पर गए थे. तो कम संख्या में हाजिर हुए थे, लेकिन फिर भी वी डोंट सी द नंबर्स. बट देखो वो इंडियन कल्चर को कैसे अडेयर करते हैं. हर प्रोग्राम में उनका भरतनाट्यम का डांस या गीत होते थे, फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू होता था. तो ये भी और एक प्रोग्राम. ये अपना बाबा का रिट्रीट सेंटर में हॉल है. ये वैसे छोटा ही है, इससे भी बहुत बड़े बड़े हॉल्स. और हम हर जगह पर दीदी का मैसेज लेके गए थे, कुलदीप दीदी का. तो कुलदीप दीदी भी बहुत ग्रीटिंग्स ब्लेसिंग्स दिए थे. तो हिंदी में था तो हम एक्सप्लेन भी करते थे हर जगह पर, हर कंट्री के लिए. ये भी रिट्रीट. तो ये एक रिट्रीट तेलुगु रिट्रीट का 1 दिन का रिट्रीट था. सेम टाइम पर मदर्स डे भी था, तो हर जगह पर मदर्स डे सेलिब्रेशंस भी था. ये एक हिंदी ग्रुप था जिसका मदर्स डे सेलिब्रेशंस था. ये सब रोज़ क्लास में आने वाले माताएं थे. और ये 11 वाली रिट्रीट सेंटर जहाँ पर आप वो बहन को देखा, बहुत प्यारी, मीन्स शी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड. तो वहाँ का 2 मेन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. 2 मेन एनिमल्स, एक तो कैंगरू मालूम है, एक कोला करके बोलते हैं, मालूम होगा आपको. तो कोला 20 आवर्स सोती है और 4 घंटा खाती है. तो उसका और कुछ नहीं है, पूरा दिन यही है. तो उसको फीड करने के लिए और उसको पैट करने के लिए एक्स्ट्रा टिकट लेके गए थे हम. तो उसको जगाते हैं इंटरवल्स में, तब खिलाते हैं ताकि वो जगे रहे. तो वो बहन गिफ्ट कर रहे थे, एक कोला एक कांगरू. वो तो ये है कोला. तो उसको खिलाने के लिए और पैट करने के लिए इंटरवल्स में उसको जगाएंगे. ये भी सिडनी का. और ये ब्रिस्बेन का ये रेडियो प्रोग्राम था. तो लोग फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जानकारी के लिए बाबा के पास, मतलब बाबा के सेंटर पर आए थे तेलुगु वाले. ये मैंने बताया ना, सिंगापुर में बाबा का रिट्रीट जहाँ पर चला था वो एकदम समुंदर के सामने था. तो मॉर्निंग का बहुत अच्छा सीनरी था. और हम 1 दिन वहाँ पर ही थे फुल टाइम.
ये हम सब साथ में बैठ के खाना सब मतलब घर जैसा लग रहा था। हाँ जी, they have. I had one program on Saturday evening. Yeah, because I had to be in Malaysia for Sunday. So half weekend I was in Singapore and night travel, and then tomorrow morning 4 o'clock in Malaysia. तो ये तेलुगु एसोसिएशन वाले थे, स्पेशली सिंगापुर के, तो उनसे भी मिलन हुआ था। और ये सिंगापुर का सेंटर बाबा का, और ये रिट्रीट जब चल रहा था ये समुंदर के किनारे पर। ये पूरा तेलुगु फैमिली है। और ये इंडोनेशिया जो बहन के बारे में मैंने बताया ना, जानकी बहन, तो वो बहन शी इज़ 82। एंड ये पूरा बाबा का घर इतना लंबा, बहुत बड़ा, 1000 लोग बैठने का हॉल है। और ऐसे डिफरेंट बाबा के घरों में गए थे। ये मलेशिया का हॉल है, ये भी 1000 लोग बैठने का बहुत बड़ा सा बाबा का हॉल है। राइट। देखो वो लोग इंडोनेशियंस, उनको भाषा भी नहीं आती, तो बाबा के लिए कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। हिंदी गीत गा रहे हैं हमारे स्वागत में। Every Sunday morning class 110 members. So nice. ये पूरा बाबा का घर ही है। ये टिपिकल बालिनीज म्यूजिक है, बर्ड्स चर्पिंग। ये ब्रह्मा भोजन है उनका एवरी संडे मॉर्निंग को। तो ये था मीन्स बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे लर्निंग्स, बहुत खुशी दिया, और हम भी बहुत खुशी प्यार दिए और बहुत अच्छा एंजॉय भी किया, और साथ साथ बहुत ब्लेसिंग्स जमा करके आए। तो खास करके कुलदीप दीदी, यहाँ के जो निमित्त आप हमेशा मिलते रहते हैं, दीदी का बहुत बड़ा योगदान था। वैसे तो बहुत सारे देशों में रहे हैं, सेवा किए हैं, लेकिन ये टूर इट वाज वेरी डियर, वेरी लविंग, बहुत इंटेंस, बट इट वाज वेरी एन्जॉयबल ऑल्सो। तो 35 डेज़ ये पूरा ट्रिप था। थैंक यू वेरी मच। मेनली आपको वहाँ की सेवाओं के लिए बताने के लिए ही ये टॉक रखे हैं। ओम शांति।